Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome Metropolitan Foundation online classes. This is your IT teacher Miss Faresh Shaheen. Students, how are you? How are you? I hope you all are fine, safe, healthy at home. Student, today I am going to teach you unit number 8 PowerPoint month of January. You make a title page month of January, write your unit name and then after you start your work very carefully, neatly. Now students, I share some my memories to you. For few months, I have been working on a project that is school videos, online classes. Online classes has start again from 30th November. You had got your result. Now, student, it is suitable time to improve yourself in all subject. You should take help from your elders, your teachers, and e-learning. So students nowadays getting education has been become easier because of e-learning. We can gain a lots of knowledge through the articles, videos posted on the internet. So let's start our e-learning Metropolitan Foundation YouTube channel. PowerPoint is a wonderful Microsoft Office Microsoft presentation software is a program that helps you in making presentation. I am working on the PowerPoint since lockdown has been started. I made all the videos on the PowerPoint and you have seen PowerPoint has been released from time to time. PowerPoint 97, 98, 2002, 2003 and that latest version. In your book, we will learn PowerPoint 2003. It's the part of MS Office package. Student, you have learned MS Office, Excel now, and the third one application is PowerPoint. We will learn PowerPoint with new features 2003. Okay students, let's start. We will learn in this unit starting PowerPoint component of the PowerPoint window. Number 1, title bar, menu bar, standard toolbar, formatting toolbar, slide, drawing toolbar and status bar, etc. Page number 93, see the window, how to start PowerPoint. Page number 93, starting PowerPoint 8.1. Let's learn how to start PowerPoint. Start PowerPoint by following these steps. Click Start button on your computer. Move the pointer to the Program option. In Program menu, click the Microsoft Office. In Microsoft Office, click the Microsoft PowerPoint. Now here I explain you in Urdu. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना है पावर पॉइंट को अपने कंप्यूटर पे. सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे इसे, क्लिक द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन और फिर आप अपना पॉइंटर लेकर जाएंगे प्रोग्राम ऑप्शंस पर. इसके बाद आप मेनू बार पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के और उसके बाद ऑफिस पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे. स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं और अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं. अच्छा, शॉर्टकट बनाने का फ़ायदा क्या होता है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है. अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो भैया आजकल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत एडवांस हम लोग 21 सेंचुरीज़ के अंदर मूव कर गए हैं और यहाँ घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपको अपना गूगल करना है पावर पॉइंट और गूगल करने के बाद आप पावर पॉइंट की सारी चीज़ें देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, क्या क्या है पावर पॉइंट में, कैसे स्टार्ट होता है पावर पॉइंट, हर चीज़ आपको अवेलेबल है आपके गूगल के ऊपर.
तो आप जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, यू शुड गो गूगल एंड गूगल इट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। ओके, तो आपके पास पावर पॉइंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर वो भी मुश्किल लग रहा है आपको तो आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको पावर पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हम इसमें बहुत ज़्यादा लंबा काम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। तो फर्स्ट वन बाय वन हम ईजी करके आपको चीज़ों को बताना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले आपको स्टार्ट करना बताया, उसके बाद हमने शॉर्टकट बना लिया पावर पॉइंट का और उसे अपने डेस्कटॉप पर रख दिया। डेस्कटॉप पर डबल क्लिक जब भी हम करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में। अगर हमें मोबाइल के ऊपर पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है तो हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आप इसे गूगल कर लें। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो पेज नंबर 93 के ऊपर एक स्क्रीन दी हुई है, वो स्क्रीन आपके प्रोग्राम के अंदर लोड हो जाएगी, लोडेड फ्रॉम प्रोग्राम। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि व्हाट इज़ पावर पॉइंट। नाउ आई एक्सप्लेन यू इंट्रो ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पावरफुल टूल है। पावर पॉइंट इज़ द पावरफुल ईजी टू यूज़ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which allows you to create a professional looking electronic slideshow. PPT is used to present information in an organized manner to an individual or group using clip art, sound clips, movie clips, graphics, charts. इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप वेब स्क्रीन्स एंड मैनी अदर्स फीचर्स। यू कैन ईजिली क्रिएट अ प्रेजेंटेशन दैट विल impress your audience and convey your message clearly and professionally। आपने देखा ना कि मैं अपना मैसेज कितने आसानी से और क्लियरली आप तक पहुंचा देती हूँ। वो किस वजह से, पावर पॉइंट की वजह से। पावर पॉइंट की स्लाइड शो से मैं आप लोगों को अपनी जितनी भी वीडियोस अब तक सेंड कर चुकी हूँ वो सब किसके ऊपर बनी हुई है, पावर पॉइंट के ऊपर। पावर पॉइंट एक बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स टूल है, सॉफ्टवेयर है। अभी क्योंकि आप क्लास 6 में हैं तो इस सॉफ्टवेयर को आप प्रोफेशनली तो नहीं सीख पाएंगे क्योंकि इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। आप छोटी छोटी सी स्लाइड्स बना सकते हैं, जैसे कि आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, उन पिक्चर्स को आप कोई टाइटल दे दें, टाइटल देने के बाद आप उसकी मूवी भी बना सकते हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर के अंदर इसे करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जब ये करेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम कब करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग? ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर के अंदर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो हमने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर तो ले लिया और वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, वो सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट है। अब इस पावर पॉइंट के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स तो मैंने बता दिया, छोटी छोटी पिक्चर्स को लगा सकते हैं, उन्हें एनिमेशन कर सकते हैं, एनिमेटेड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम फिर दोबारा आते हैं अपने पेज नंबर 94 के ऊपर। कंपोनेंट ऑफ द पावर पॉइंट विंडोज़ 8.2। यहाँ आप देखेंगे कि पावर पॉइंट हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट, ईच विल अ यूनिक फंक्शन। सी द विंडो। यहाँ आप देखेंगे outline, view the buttons, the drawing toolbars, slide and notes pan. Now what is title bar? First जो हम पढ़ेंगे वो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टाइटल बार
क्या करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि MS ऑफिस में भी मैंने आपको टाइटल बार बहुत अच्छे से समझाया भी था और उसकी मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया था कंप्यूटर के ऊपर। अब यहाँ पर व्हाट इज़ टाइटल बार, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर टाइटल बार क्या है। टाइटल बार द डिस्प्ले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन। हमें कभी भी अपने प्रेजेंटेशन का नाम देखना है तो हम किस पे देखेंगे, टाइटल बार पे। एंड मिनिमाइज एंड रीस्टोर एंड क्लोज बटन, और इसी के साथ ही हमें 3 छोटे छोटे, एक माइनस का निशान, एक क्रॉस का निशान और एक मिनिमाइज का बटन नज़र आ रहा होता है। तो जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी आपको तो ये सब चीज़ें आपको दोबारा दिखा दूंगी। द टाइटल बार डिस्प्ले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड मिनिमाइज रीस्टोर एंड क्लोज बटन। तो जब आपने देखा था कि जब आपने MS ऑफिस की प्रैक्टिस की थी तो आपने देखा था कि MS ऑफिस की फाइल्स किस तरह से आपको नज़र आ रही होती थी ऊपर। जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन को कोई नाम देंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टाइटल बार के ऊपर वो शो होगा, जैसे कि हमारा MS ऑफिस में शो हो रहा था। उसके बाद MS ऑफिस की फाइल को हम, जो एक्सटेंशन होता है उसका, वो DOC होता है, डॉक्यूमेंट बिफोर वर्ड। डॉक्यूमेंट CX है तो डॉक्यूमेंट बिफोर, CX है आफ्टर और बिफोर, ये 2 फर्क आ जाते हैं। तो हम इसे किससे शो कर रहे होते हैं, DOT से और DOC से और DOCX से। मैं ये जब आपको समझाया था, जब करवाया था, तब आपने यही देखा होगा। अब देखते हैं कि पावर पॉइंट पे एक्सटेंशन क्या है। PPT नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है आपको PPT। आप देखिए कि एक्सटेंशन क्या है। PPT से पहले डॉट डालना है। क्या डालना है स्टूडेंट्स, डॉट। डॉट के बाद हम लिखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है PPT की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, PPSX पावर पॉइंट स्लाइड शो, इससे पहले भी डॉट डलेगा। तो हमने देखा कि एक्सटेंशन जो है वो शो करता है हमारा फाइल को। किसको शो करता है, फाइल को शो करता है। और फाइल को शो करना तो आपको पता है ना, बहुत ज़रूरी होता है कि फ़ाइल को किस तरह से शो किया जाए। यानी अगर हम किसी भी फाइल को देखेंगे तो हमें एक्सटेंशन से ये पता चल जाएगा कि ये फ़ाइल जो है एक्सेल की है, ये फ़ाइल वर्ड की, और ये फ़ाइल पावर पॉइंट की है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेनू बार पर। मेनू बार जो है वो आपको सिंपल पता है। इसमें फाइल होती है, होम होता है, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये सारे बटन्स जो हैं आपके वो इस पर होते हैं। तो मेनू बार क्या है, द मेनू बार हैज़ द फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स और स्लाइड शो एंड हेल्प मेनू। ये सारे आपको डिफरेंट काम करके दिखा रहे होते हैं। अगर हम देखना चाहेंगे इसको तो इसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। और जब मैं आपका प्रैक्टिकल, एक मैं वीडियो आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल बनाऊंगी, उसमें मैं आपको शो करूंगी कि ये सारे टूल्स जो ये छोटे छोटे आप देखिए, छोटे छोटे आपको फाइल, होम और ये बटन नज़र आ रहा है, इनके डिफरेंट काम हैं। और आप जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे तो आपका रिबन चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना रिबन क्या होता है, रिबन बिल्कुल पूरा चेंज हो जाता है। इंसर्ट पे करेंगे तो दूसरा रिबन आ जाएगा। अगर हम डिज़ाइन पे करेंगे तो ये जितने भी आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और उनके ऊपर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, नीचे की स्लाइड आपकी चेंज हो रही है। क्या हो रही है, नीचे की स्लाइड चेंज हो रही है। तो अब हमने 2 आपको ऑप्शन सिखा दिए, टाइटल बार, मेनू बार। अब आ जाते हैं तीसरे बार। तीसरा है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार जैसे आपको पता है कि स्टैंडर्ड टूल बार क्या क्या करता है। द स्टैंडर्ड टूल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो बिलो द मेनू बार। इट हैज़ द शॉर्टकट फॉर द कमांड्स required for the creating a new presentation or opening and saving, editing, printing an existing presentation. You see all the
boxes given on the standard toolbar. Formatting toolbar. The formatting toolbar is allocated just below of the standard toolbar. It has the icons or buttons that help you in फॉर्मेटिंग द टैग्स इन योर स्लाइड. आपने देखा होगा कि जब हमने वर्ड के ऊपर काम किया था तो फॉर्मेटिंग बटन्स को हमने बहुत यूज़ किया था. उसमें हमने टैग्स को डिफरेंट स्टाइल देने की कोशिश की थी, साइज़ देने की कोशिश की थी. फिर उसके अंदर हमने उसका फॉन्ट साइज़ दिया था, फिर हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया था, फिर अलाइन को जस्टिफाई किया था कि लेफ़्ट करना है, राइट करना है. और उसके बाद हमने वर्ड आर्ट को भी करा था. कुछ कलर अपने टैक्स को कलर भी हमने डिफरेंट तरीक़ों से दिया था. तो ये काम हम एक्सेल में भी कर चुके हैं और ये काम हम वर्ड पे भी कर चुके हैं. तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर वर्ड आर्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट तरीके से आता है और बहुत स्टाइलिश आता है और इसको करने में बड़ा मज़ा भी आता है. अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये सब मैंने करा हुआ है. तो इसको सबको बोल्ड किया हुआ है. आपने देखा मैंने बोल्ड किया हुआ है, लेकिन मैंने कलर नहीं डाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं था. लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड जो आपकी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन है आपकी अभी जो आई है आपकी इंग्लिश ग्रामर की, उसमें मैंने बहुत डिफरेंट कलर यूज़ किए क्योंकि ये ज़रा सोबर सी थी. बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी. बुक के कलर्स को मैंने चूज़ किया, जैसे बुक में दिया हुआ था वैसे ही मैंने किया और उसी से मैंने ये आपका कंटेंट उठाया. तो कंटेंट है मैंने वो बुक से उठाया. तो इसलिए आपको ये कि फ़र्क ना महसूस हो और आप परेशान ना हो कि पता नहीं मिस ने कहाँ से दे दिया, तो मैंने बुक को ही लिया है. तो आपने देखा कि फॉर्मेटिंग टूल बार क्या कर रहा है. फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो जैसे वर्ड में हम यूज़ कर रहे थे वैसे ही कर रहा है. अब आते हैं हम ये आपका, अब देखिए एक और विंडो नज़र आ रही है जिसे हम कहेंगे स्लाइड पेन. द स्लाइड पेन इज़ द ब्लैंक एरिया वेयर यू वर्क द इंसर्ट टेक्स्ट, पिक्चर्स एक्सेट्रा एंड व्यू द कंटेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. आप यहाँ पर देखिए रफ काम की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं स्लाइड पेन को. स्लाइड पेन क्या है, आप जैसे कॉपी के अंदर एक खाली पोर्शन छोड़ देते हैं और उसमें डिफरेंट काम करते हैं, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं. अब आ जाता है ड्राइंग टूल बार. ड्राइंग टूल बार is allocated at the bottom of the PowerPoint window. It has icons of the drawing tools that help you to draw shapes, lines and connectors, text box etc, clip art and word art etc. यहाँ आप देखिए कि ड्राइंग के जो शेप्स हैं वो बहुत डिफरेंट है. आपने बहुत सारे डिफरेंट शेप्स देखे होंगे लेकिन पावर पॉइंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैं. लाइंस को आप कैसे दे सकते हैं, यानी बॉक्सेस के अंदर दे सकते हैं और फिर उसके साथ हम कनेक्टर्स भी जोड़ सकते हैं. कनेक्टर्स वही काम कर रहे हैं जैसे हमारे बुलेट्स वगैरह नहीं कर रहे थे वैसे ही. और टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर हम टेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं कि टेक्स्ट का शेप और साइज़ हमने कैसे देना है. और ये आपको वर्ड में भी मिलता है, ये आपको एक्सेल में भी मिल रहा है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी मिल रहा है. लेकिन पावर पॉइंट और वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट दो जितना खूबसूरत पावर पॉइंट में है उतना और में मुझे मज़ा नहीं आया. मुझे पावर पॉइंट पे करने पर बहुत मज़ा आया. तो ये डिफरेंट आपको मैंने जो स्लाइड्स दिखाई हैं ये आपकी बुक्स में हैं. पेज नंबर मैंने आपको पहले शो कर दिए हैं, तो उन्हें आपने क्या करना है, अपनी बुक्स को अच्छे से रीड करना है, उनको नाम याद करने. और इनको मैंने पीछे लास्ट में आपको इसकी शॉर्टकट कीज़ भी दी हैं. अच्छा, एक मैंने ना टेस्ट पेपर भी डाला है, तो उसे अभी देखते हैं हम. थोड़ा सा पहले इनको समझ लें. स्लाइड पेन हो गया, ड्राइंग टूल बार हो गया, तो इसको अच्छे से समझ लें आप कि इनके काम क्या है. जब आपको काम याद हो जाएंगे तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं. अब आ जाता है स्टेटस बार. स्टेटस बार इज अलोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट. इट शोज द मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द व्यू सच एज स्लाइड नंबर एंड द करंट थीम टेम्पलेट यूज. देखो स्टूडेंट्स, जब आपसे पेपर में पूछा जाता है, आपका जो है ओरल होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्टेटस बार कहाँ पर होता है. तो आप इस
इसी में फंस जाते हो और कहते हो पता नहीं कहाँ होता है मिस। तो अब आप देखिए कि हम ये जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स ऐसे वाले कहाँ कब कर रहे होते हैं, जब आपका हम प्रैक्टिकल लेते हैं और वाइवा लेते हैं। वाइवा में हम ये क्वेश्चंस करते हैं कि स्टेटर बार कहाँ पर होता है, और बहुत सारे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे भी नहीं बता सकते कि स्टेटस बार कहाँ होता है। तो स्टेटस बार allocated at the bottom of the PowerPoint, it shows the message and information about the views such as slide number। अच्छा, स्लाइड का नंबर और करंट थीम टेम्पलेट यूज जो हो रही है वो दोनों इसमें दिखाई जाती है। अब स्विच करते हैं हम करते हैं हम आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आंसर्स यानी क्वेरीज कर रहे हैं हम आपसे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप होमवर्क करेंगे, जो विंटर का होमवर्क होगा, अगर उस कॉपी में ये आपको, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी खुशी है कि आप इसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये काम आपने करना है। अपनी एक छोटी सी कॉपी ले लीजिएगा, या अगर हो सके तो ब्लैंक पेपर्स ले लीजिएगा, जो भी आपके पास हो, उस पे अगर आप कर सकें इस क्वेश्चन आंसर्स को तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए, ये ऑप्शंस आपने 2 ऑप्शन सही है, उसे आपने क्या करना है, लिखना है अपनी, जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना वैसे ही करिएगा इसे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है टाइम्स न्यू रोमन कैम्ब्रिया एरियल आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल्स हैं ये, फॉन्ट के हैं, क्लिप आर्ट के, स्मार्ट आर्ट के, थीम्स के हैं। तो ये तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अब थर्ड जो है आपका क्वेश्चन वो है विच फीचर इज़ नॉट इन MS पावर पॉइंट, कौन सा ऑप्शन MS पावर पॉइंट में नहीं होता। विच नंबर 4 विच फीचर यूज टू चेक स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपकी बुक में हैं, मैंने कहीं और से नहीं लिया, आपकी बुक से ही लिया है। MS पावर पॉइंट इज़ द सॉफ्टवेयर। नंबर 5 सॉफ्टवेयर ऑफ, ये भी आपको बताना है। नंबर 6 देखिए विच इज़ द राइट टर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन पेज। नंबर 7 है इन विच बार वी कैन सी द करंट पोजीशन ऑफ द स्लाइड। नंबर 8 द स्लाइड that is used to introduce related topic and set for presentation is called the। number 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 which term is related with decorative text। number 10 PowerPoint presentation is are widely used as। अब आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी बैक पे मिल जाएंगे, वो आपने देखने नहीं है, पहले आपने कॉपी पे ये काम करना है और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को चेक करेंगे ईमानदारी से, ऑनेस्टली से। ओके, नाउ स्विच द नेक्स्ट पेज। पावर पॉइंट कीज, शॉर्टकट कीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द शॉर्टकट कीज इन एवरी सॉफ्टवेयर, MS Word, MS Excel। Now the PowerPoint shortcut keys very common. We have used in different keys in our MS Office work and Excel work. Okay, these keys is very easy, you should learn by practice। कंट्रोल N क्या कर रहा है, शॉर्टकट एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्टकट भी और डिस्क्रिप्शन भी, यहाँ उसका काम करना बताया गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके आने वाले कल फ्यूचर में, अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम या कोई ऑफिस का कोई काम कर रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, तो ये शॉर्टकट कीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए बेटा। तो आप अभी से इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। नंबर 1 है कंट्रोल N। क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के को अगर हमें लेना हो तो हम कंट्रोल N दबाएंगे। कंट्रोल O ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जो कंट्रोल O से हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं हमारी प्रेजेंटेशन को। कंट्रोल W से क्लोज कर रहे हैं करंट प्रेजेंटेशन को। करंट प्रेजेंटेशन जो ओपन हुई भी उसे कंट्रोल किससे कर रहे हैं, कंट्रोल W से कर रहे हैं। कंट्रोल S सेव द एक्टिव प्रेजेंटेशन को सेव कर रही है, हमें बार बार कंट्रोल S करना चाहिए, मैं बार बार कहती थी ना आपको। और F12 क्या कर रही है, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर रही है।
कंट्रोल जेड अनडू द टेक्स्ट एक्शन, कोई प्रोग्राम हमें नहीं चाहिए अनडू करना है तो हमें कंट्रोल जेड यूज़ करना चाहिए। कंट्रोल वाई रीडू, रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई। कंट्रोल ए सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, कंट्रोल सी कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। कंट्रोल एक्स कट सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल एस जो है वो कट कर रहा है, कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा है। ये तो बहुत आसान है और यही कीज़ आपकी पावर पॉइंट में और यही कीज़ वर्ड में और यही कीज़ आपकी एक्सेल पे भी यूज़ हो रही है और आगे भी कहीं ज़रूरत होगी तो यही कीज़ आपकी यूज़ होती है। कंट्रोल बी अप्लाई और रिमूव द बोल्ड। कंट्रोल आई अप्लाई एंड रिमूव द इटैलिक। कंट्रोल यू अप्लाई टू रिमूव अंडरलाइन। अब देखिए दो काम कर रही है ये की, अप्लाई भी कर रही है रिमूव भी कर रही है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा कि अप्लाई भी उसी से हो रहा है और रिमूव भी उसी की से हो रहा है। कंट्रोल आर द राइट अलाइन टेक्स्ट कर रही है, कंट्रोल आई लेफ्ट अलाइन कर रही है, कंट्रोल ई सेंटर अलाइन कर रही है, कंट्रोल आई जस्टिफाई कर रही है और कंट्रोल एम एट द न्यू स्लाइड कर रही है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो बड़ा अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्मार्टली अपनी चीज़ों को याद करते हैं। तो आप ये शॉर्टकट कीज़ याद करके किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एफ और एच क्या कर रहा है, ओपन एंड फाइंड। कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन क्या कर रहा है, इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड सेलेक्ट टेक्स्ट। कंट्रोल एफ एस क्या कर रहा है, स्टार्ट स्लाइड शो। शिफ्ट प्लस F5 क्या कर रहा है, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। कंट्रोल के क्या कर रहा है, इंसर्ट अ हाइपरलिंक। कंट्रोल 7 क्या कर रहा है, ओपन स्पेल बॉक्स। शिफ्ट प्लस F7 क्या कर रहा है, यूज द थिसोरियस। और स्किप हाइफन फाइंड द स्लाइड शो। स्पेस और एन एडवांस to text slide, backspace return to previous slides, B display a blank slide, W display a white slide, control plus U mute the sound, mute करना यानी आवाज़ को बंद करना। P go back to previous slide, enter perform the next animation, control shift G group objects, control shift H ungroup the object। shift plus F3 change the case of the text। टेक्स्ट का अगर हमें केस को चेंज करना है यानी छोटी या स्मॉल ABCD लिखनी है, बिग लिखनी है, तो वो कंट्रोल शिफ्ट F3 से होगी। कंट्रोल प्लस F1 हाइड द शो द रिबिन। रिबिन को हाइड करने के लिए कई बार देखा होगा आपने कुछ स्मार्ट बच्चे हैं तो वो इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके आप लोगों को ये शो करते हैं कि देखो हमने आपकी ये चीज़ कहाँ छुपाई, तो आप भी ये सब काम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फिनिश होती है। नाउ मैं आपको बहुत जल्दी आपकी क्लास में देखूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना काम बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग भी आपको बहुत मिस करते हैं और आप जल्द से जल्द स्कूल आएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। सी यू इंशाल्लाह इन क्लास। अल्लाह हाफिज़।